Hello everyone, welcome to my YouTube channel Krishna Public School. Myself Himlata will represent you about the topic in social science understanding the past. Chapter number 14 in social science for class 3 students. This student today we will understand about the things who have done in the past, whether it is painting, tools, how early men used to fire, how early men discovered the fire, how early men, Estonian peoples, used to work on the documents. So then we will study in some cases. So let's start the chapter understanding the past. In related to the chapter student, we will understand about also the early men. Fine. So then let's start the chapter. You have seen in this video that how early men used to fire, how early men make the tools, how early men used to cultivate the crops, how development you can see early men can be useful for the future. Okay, how did he learned about all the things? So then you can see in this video tools are here. It is made up of iron, firstly in ancient times, so that early means has also used to discover the fire, how two stone are lit with each other and discovery of fire has been started. After that he learned about the cattle rearings, how animals were reared in the houses, that how he learned he lived in the huts and the kacha houses, because in before 2000 years early men lived in the caves, okay, in the caves. So that so many developments will be changes about the early man, and day by day it has improved to better than better. Okay, so then read out the chapter in the book. Past, present and future. Beta, you know about the past, present and future will be divided into the three category. And past means who has done in the past, जो बीत गया, complete हो चुका है work. Present which is going and which is what is happening right now, जो अभी चल रहा है, that is called present. And future, what will done on tomorrow. Fine. So that everyone depend on tomorrow, that is called future. We know that things were different during our grandparents' time from what they are today. हम सभी जानते हैं बेटा कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपना लाइफ जिया है, सरवाइव किया है, एंड व्हाट दे आर टुडे, और जो आज डिफरेंस है बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड आवर पेरेंट्स विद अस, हाउ डू वी लर्न अबाउट दैम, हम उनको कैसे पता लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ ग्रैंड पेरेंट्स ने जी है, सरवाइव किया है. वी लर्न अबाउट आवर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम बाय ऑब्जर्विंग द फोटोग्राफ्स एंड द थिंग्स दे यूज्ड व्हाट दे आर एज एंड कंपेयरिंग दोज थिंग्स विद द थिंग्स दैट वी यूज टुडे. वी लर्न अबाउट ऑल ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे हम उसको चूज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी है, कैसे पता लगा सकते हैं उनकी फोटोग्राफ्स देखकर, थिंग्स विच दे हैव यूज्ड, उनकी चीजों को देखकर. ओके, दे वर आर एज, कंपैरिजन, हम अपनी एज की कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, उनके फोटोग्राफ से और उनकी things they have used. These are things of past, a time gone by. Gone by means which have passed out, जो गुजर चुका, जो complete हो चुका, time that are called past. The present is the period of time that we are in now and the things that are happening. Present means
वो टाइम जो हमारा अभी वर्क चल रहा है, जिसमें हम अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, दैट इज राइट नाउ इट इज रिलेटेड टू द हैपनिंग. फ्यूचर इज द पीरियड ऑफ टाइम दैट विल कम आफ्टर द प्रेजेंट ऑफ द थिंग्स. फ्यूचर बेटा डिपेंड ऑन द प्रेजेंट, क्योंकि जो चीज़ आज हम कर रहे हैं अगर वो चीज़ पेंडिंग रह जाती है तो दैट विल बी डन आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर द नेक्स्ट डे, दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर. ओके, so then I hope you understand the difference between past, present and future. Now come on beta, as you know, understanding the past, so that we have to know firstly about the history. What is history? History क्या है बेटा? History is an account of events that have happened in the past. हिस्ट्री वो एक इवेंट्स का अकाउंट है. इवेंट्स मीन्स जो जो वर्क हमारा पास्ट में रिलेटेड हुआ है, तो कलेक्टिवली हमें एक ही जगह वो एक ही सोर्सेज में मिल जाएगा. तो जो सोर्सेज हमको मिले हैं वो हमें हिस्ट्री से मिले हैं, बिकॉज जितना भी वर्क हमारा पास्ट में हुआ है वो हम उन सोर्सेज से हम पढ़ सकते हैं. इट टेल अस अबाउट द इवेंट ऑफ द पास्ट. वो हमें बताता है कि पास्ट में ये इवेंट आपके कंप्लीट हुए हैं. It also tells us the important people in the past, important people, important events, important dates के बारे में वो हमको बताता है. तब हमें पता चलता है कि इतना वर्क इस डेट में यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. What they did, things they used, the food they ate, क्या उन्होंने खाया था, क्या उन्होंने वर्क किया है, क्या चीज़ें वो अपना यूज़ करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम पास्ट में पढ़ सकते हैं. तो बेटा हिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री वो होती है जिसके जो भी रिलेटेड टू द इवेंट्स हम पास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो फूड हमने खाया है, जो भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, क्या हमने अभी तक वर्क किया है, तो सारा जो कंटेंट है वो हम हिस्ट्री में अपना देख सकते हैं. ओके, एंड अब आप ये पूछोगे कि जो हिस्ट्री है वो हमें कहाँ से मिली. ओके, so that our next topic is sources of history. How do we know about people who lived thousands of years ago? अब आप ये जानना चाहते हो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले पीपल के बारे में कि वो कौन थे. तो जो पीपल थे वो थे हमारे अर्ली मैन्स, जिनके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की है, किस तरह से उन्होंने लाइफ में अपना डेवलपमेंट किया जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं. वी ऑब्जर्व द थिंग्स दैट दे यूज्ड, दीज थिंग्स आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हमने ऑब्जर्व किया कि जो थिंग्स हम यूज्ड करते थे वो थिंग्स कहलाता था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स विच गिव अस क्लू अबाउट हाउ दे लिव्ड. जो सोर्सेज हिस्ट्री के हमको मिले हैं वो किसने फाइंड आउट किए हैं? आर्कोलॉजिस्ट ने. आर्कोलॉजिस्ट मीन्स बेटा जो हमारी हिस्ट्री के, हमारे पास्ट के डॉक्यूमेंट्स या मटेरियल्स और रिसोर्सेज हमको प्रोवाइड कराते हैं. ओके, दीज थिंग्स आर यूजुअली कैप्ट इन द म्यूजियम्स. वो चीज़ें जो होती हैं जो आर्कोलॉजिस्ट निकालते हैं ग्राउंड से बाहर, वो चीज़ें म्यूजियम्स में रखी जाती हैं. और म्यूज़ियम्स में रखी जाती हैं, वहाँ हम उनको देखकर, उनके बारे में जानकर, इंफॉर्मेशन वो हमको देती हैं, तब हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ें हमारी रिलेटेड टू द पास्ट है. लेट्स लर्न मोर अबाउट दैम. बेटा नाउ वी विल स्टडी अबाउट मोर डिटेल्स. मोर डिटेल्स मीन्स एक रिटन रिकॉर्ड्स के अलावा को क्या क्या चीज़ें जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा कॉइन्स. कॉइन्स कैन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मेटल्स यूज्ड इन द पास्ट. कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जो मेटल्स यूज्ड होता है कॉइन्स को बनाने में, और किस तरह के मेटल्स वो बनाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. हाउ स्किल्ड पीपल आर, किस तरह की स्किल्ड पीपल यूज्ड करते हैं. स्किल्स मीन्स होता है बेटा नॉलेज. ठीक है, किस तरह की कॉइन्स को बनाने में मटेरियल के साथ साथ स्टेप्स यूज किए जाते हैं.
The inscriptions on the coins tell us about the time in which they were made. जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है बेटा राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑन द कॉइन्स. जो लिपि लिखी जाती थी 1000 पहले, वो आज चेंज हो गया है इंस्क्रिप्शंस में. तो जो राइटिंग्स हैं कॉइन्स पर, वो हमें इंफॉर्मेशन बताती हैं कि वो किस टाइम जो ईयर्स था वो जो कॉइन्स है वो ऑथराइज किया गया था बाय द मुगल पीरियड in the 19th century, in the 12th century till now. Okay. Next is document. Document or written texts are also the best sources of history. Documents होते हैं बेटा. अब जैसे हम हिस्ट्री की आपकी बुक है, these are called the documents also, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए हम लोग हिस्ट्री के सभी चीज़ें पता कर सकते हैं. कौन सा इवेंट किस काल में हुआ है और कौन सा इवेंट किस डेट में कंप्लीट हुआ है, तो वो हमारा जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है वो उसमें बता सकते हैं. क्यों? बिकॉज दे गिव अस डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल. सपोज यू कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का अगर एग्जाम्पल है तो महात्मा गांधी का एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, तो वो महात्मा गांधी की ऑटोग्राफी के बारे में ही बात करेगा. वो जो रिकॉर्ड होगा वो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डायरेक्टली बात करेगा और उसका जो इवेंट्स है उसके बारे में भी वो हमको इन्फॉर्म करेंगे. नाउ बेटा मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट किस तरह से हमको आइडियाज़ देते हैं हिस्ट्री का? बिकॉज बेटा मोस्टली जो मॉन्यूमेंट्स हैं दे आर बिल्ड इन द मुगल पीरियड एंड दे रिमेंबर अस हाउ मुगल पीरियड बिगेन इन दैट सेंचुरी, विच किंग और क्वींस हैज़ बिल्ड इट. ओके, किस एम्परर के राज शासन में ये बना था. तो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो भी एक बेस्ट आइडिया है हमको बताने का, हिस्ट्री से रिलेटेड इवेंट्स रिमेंबरेबल कराने का. मॉन्यूमेंट्स गिव अस एन आइडिया ऑफ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलोड इन अ सर्टेन पीरियड. जो बेटा मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो हमें एक स्टाइल देते हैं, आइडियाज़ देते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाते थे और जिस तरह की उसकी डिज़ाइनिंग होती थी उसके बारे में भी लोगों को वो बताते कि हाउ द पीपल लिव्ड. जो पर्सन थे, जो लोग थे, वो कैसे रहते थे. कम ऑन द बेटा नेक्स्ट टूल्स. अभी हमने टूल्स की भी स्टार्टिंग में बात की थी वीडियोस में. टूल हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ अर्ली ह्यूमंस इन्वॉल्व्ड टू बिकम व्हाट दे आर टुडे. टूल्स भी हमको बताते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो आज की तरह कैसे बने, उनके टूल्स आज किस तरह से डेवलप हुए. फर्स्टली early man also used the iron tools, then copper, then bronze, okay, then the brass metals. But nowadays iron changed into steel and some tools also can be done in the iron. Coins can be converted into the gold and copper and the silver coins. Okay, so then metals are used to become the part of the tools. Next is beta paintings. Paintings are also an important source of information since many stories are told through them. पेंटिंग को देखकर भी बेटा हम लगा सकते हैं आइडियाज़ कि जो पेंटिंग्स हैं ये हमारी किससे रिलेटेड है. जो पेंटिंग्स है वो भी हमारी मुगल काल से रिलेटेड है. सम पेंटिंग्स, सालदा मिनीचर्स पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स, अजंता अलोरा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अपने पेंटिंग से रिलेटेड दे सकते हैं. दे गिव अस एन आइडिया ऑफ डेली लाइफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल. अगर कोई बैटल होता था, कोई लड़ाई की जाती थी, तो उसकी पेंटिंग्स हमें याद दिलाती है कि वो लड़ाई इस ईयर्स में, इस सन में, इस पर्टिकुलर किंग के, एम्परर के किंगडम में स्टार्ट हुई थी या कंप्लीट वो इवेंट हमको मेमोरेबल रहता है बाय विच थ्रू द पेंटिंग्स. एंड इट ऑल्सो प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन द पास्ट, जैसे कि कल्टिवेशन किए हुए पीपल. ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा टाइमलाइंस. टाइमलाइंस मीन्स a timeline is a list of event in the order earliest date and ends with the latest. टाइमलाइन क्या होती है बेटा? टाइमलाइन एक इवेंट की लिस्ट होती है ऑर्डरली, ओके अल्फाबेटिकली, और उसमें वो क्या करते हैं, उसमें हम किसी अकॉर्डिंग टू द डेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट किस
डेट और सन में हुआ है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द डेट्स. इट स्टार्ट्स विद द अर्लीस्ट डेट एंड एंड्स विद द लेटेस्ट. वो कब से स्टार्ट होती है, वो सपोज ए अल्फ़ाबेट टू जेड, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी डेट शेड्यूल वो है वो कंप्लीट रहता है. अ टाइम लाइन help us to know the date of events and also to know the between of two more events. टाइमलाइन हेल्प्स किसका करता है, इवेंट्स का हेल्प करता है. और क्या करता है वो, बिटवीन टू और मोर इवेंट्स, वो बहुत सारे इवेंट्स को हमें शॉर्ट आउट करता है. ओके. टाइमलाइन अबाउट योर पास्ट ऑल्सो, हम टाइमलाइन हमारा पास्ट भी दिखाता है. सपोज यू कैन टेक अ एग्जाम्पल, आर गिवन इन योर बुक 2009 सोनम वॉज बॉर्न. तो जो बर्थ डेट है उसकी दैट इज़ सोनम 2007. उसके बाद उसने स्टार्ट किया 2008 में वॉकिंग. तो एक बच्चे ने, सोनम ने स्टार्ट किया 2008 में वॉकिंग, मतलब मीन्स बेटा आफ्टर 1 ईयर. आफ्टर 1 ईयर उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, सोनम स्पोक हर फर्स्ट सेंटेंस, उसने फर्स्ट वर्ड एंड फर्स्ट सेंटेंस बोलना स्टार्ट किया इन 2009 में. आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज चेंजिंग इन द सोनम, तो सोनम joined the school in 2010. 2011 Sonam learned her alphabets. Okay, because when she has gone in the schools, she learned her alphabet. In 2012 Sonam's brother was born. और 2012 में सोनम का जो ब्रदर था उसकी भी सेम बर्थ हुआ उसका, और बर्थ के बाद उसका भी टाइमलाइन इसी तरह हुआ. तो बेटा ये जो टाइमलाइन होती है ये हमारा शो करती है इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैपन इन सोनम्स लाइफ टिल द एज ऑफ 5. ये जो हमने दिखाया है स्ट्रक्चर टाइमलाइन के ज़रिए, ये क्या है कि सपोज़ अगर एक किंग इतना बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, तो उसका जो बर्थ अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर जो उसकी बर्थ डेट होती है वहीं से स्टार्ट होता है. उसके बाद उन्होंने क्या क्या वर्क स्टार्ट किया है, उसी तरह से डिफरेंस के एजेस के डिफरेंस के एज पर द डिफरेंस वो वर्क उसका शेड्यूल चलता रहता है टिल द डेथ. ओके, जब तक वो सर्वाइव करता है. तो जो टाइमलाइन होता है दे हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द पास्ट. तो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है ना, तो बेटा उसकी एक डायरी बन जाती है, और उस डायरी के ज़रिए हम लोग उसको कंप्लीटली उसके बारे में हम ऑटोबायोग्राफी जान लेते हैं. ओके, नाउ कम ऑन रिकॉल द चैप्टर वी हैव एक्सप्लेन टुडे इन दिस चैप्टर. बेटा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक थे. टाइमलाइंस के बारे में हमने बात की. हेल्प अस टू नो द डेट एंड इवेंट्स. कॉइन्स, ओके, कॉइन्स आर मेड अप ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रांज एंड आयरन कॉइन्स. डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बात की. दीज आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स विच हैव डन बाय द किंग और एम्परर. टूल्स के बारे में हमने बात की. इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर एंड वुड ऑल्सो. फाइन. पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, Ajanta Ellora, cave painting, Mughal paintings are the famous painting of overall in this past. Okay, children, I hope you understand well about the chapter. So then let's focus the question answer of the based of the chapter. म्यूज़ियम, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूज़ियम. म्यूज़ियम किसे कहते हैं, जैसे मैंने चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था. अ प्लेस वेयर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट आर केप्ट. पास्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए म्यूज़ियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर उसको रखा जाता है. इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मीन्स बेटा वर्ड्स राइटिंग ऑन द कवर ऑफ अ बुक इंग्रेव्ड ऑन द स्टोन और मेटल्स. राइटिंग्स होती है बेटा जो लिखा जाता है, चाहे वो कॉइन्स हैं या फिर वॉल्स है या फिर आपके रिटर्न रिकॉर्ड्स, बुक्स और कॉपीज़ है. आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मीन्स मेथड और प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बिल्डिंग. अब सपोज हम एक बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, साइन करते हैं, तो वो क्या करेगा, उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेगा. ठीक है, तो उसका जो बिल्डिंग का जो टॉप प्रोसेस है, मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर. व्हाट आर टाइमलाइंस. टाइमलाइंस के बाद में हमने बात की. टाइमलाइंस आर द लिस्ट ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर व्हाट दे हैपेंड. टाइमलाइंस क्या होती हैं, वो इवेंट की लिस्ट होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कंप्लीट हो चुकी हैं इन द पास्ट. व्हाट इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है बेटा,
हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ इवेंट दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। हिस्ट्री एक इवेंट का वो अकाउंट है जो हमारे पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग से हम क्या सीखते हैं कि जितनी भी पीपल की, चाहे वो रिलेटेड टू अर्ली मेंस हैं, मुगल्स पीरियड में जितने भी लोग हो चुके हैं वो हैं। केव पेंटिंग हमें डेली लाइफ का आइडिया देती है, जो भी पीपल ने वर्क कंप्लीट कर चुके हैं उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में हमको बताती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू कॉइन्स गिव अस। कॉइन्स हमें क्या इंस्क्रिप्शंस देते हैं? कॉइन्स हमें इंस्क्रिप्शंस देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं बेटा अबाउट द मेटल्स, जो हम गोल्ड, सिल्वर या कॉपर तीनों चीज़ हम अपने पास्ट में यूज़ कर चुके हैं। हाउ आर टाइम लाइन्स एंड इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हाउ आर टाइम लाइन्स एंड इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। टाइम लाइन्स हिस्ट्री के सोर्सेज में इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, कैसे है? टाइमलाइंस आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री बिकॉज दे हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग इन द पास्ट। वो क्या करती है? हमारे पास्ट को याद दिलाने में, उनको समझने में, उनकी इंफॉर्मेशन लेने में हमें हेल्प आउट करती है। हाउ डू मोनूमेंट्स हेल्प अस लर्न अबाउट द पास्ट। मोनूमेंट्स किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं बेटा पास्ट के बारे में? इट गिव अस एन आइडिया ऑन द स्टाइल और आर्किटेक्चर फॉलो इन द सर्टेन पीरियड। जिस तरह से पीपल रहते थे, क्या चीज़ें वो देखते थे, किस तरह से डिज़ाइन उन्होंने मॉन्यूमेंट्स को दिए हैं, बिल्डिंग्स उन्होंने रेडी की है, तो उस तरह का स्टाइल और आइडियाज़ वो हमको बताते हैं। आई होप बेटा योर चैप्टर्स is completed and I hope you will understand very well beta. We will meet again about the next video of the next chapter. Thank you. Have a nice day.